What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Friday, 8th of May, and the markets seem to be in sort of a revenge against the traders. Since the last couple of weeks, the markets have been moving violently on an intraday basis. But the thing is, the markets are moving violently, but we are not getting any clear trends. If there is a trend in the morning, in the afternoon, the entire trend is getting wiped out, and there is a sharp reversal with violent blast in the option premiums. If you look at the screen here, even today, the markets have been whipsawing, but the reversals are quite rampant and most of the price action points are being breached, and वहां से liquidity को absorb करके markets a quick reversal दे रहा है. And even today there has been multiple reversals in a small 150 point range. So considering the last couple of weeks, today's range was relatively smaller and 150 point के range में markets रहा, but within that 150 point range the markets hit both the floor and the ceiling multiple times throughout the day. The straddle opened at 330, but within the first few minutes there was a spike in the straddle, but then there has been a constant dip, and as I'm speaking the straddle is trading at 290, and it is again in my opinion underpricing of risk, especially going into the weekend with a lot of news flow constantly from the geopolitical front. And crude oil, it is being manipulated like crazy, and just 2 days back the crude oil was trading somewhere around 9,600 and it made a low of 8,500, shot back to 9,200, made a low of 8,500 again, and now it is trading somewhere around 9,000 levels. So massive swings. 10% ऐसे move हो रहा है कि जैसे हलवा है. So that has been the market's regime as of now. Monday we have Nifty's 1DT. So let's get to the terminal and let's see what should be the plan of action once the market opens on Monday. So positionally speaking, the markets are not going anywhere. Some sort of a risk reversal from 23,900 levels on the bottom and 24,500 levels from the top. And generally, this is the trend that I've observed. When the positional traders are having a tough time, especially the option writers from positional front are having a tough time, then intraday में काफी आसानी से पैसे बन रहा होता है. And when the markets are in a small range from a positional standpoint, then generally intraday की volatility जो है वो थोड़ा elevated रहता है एंड वहां पे पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है. यस, ऑफ कोर्स द मार्केट का जो मूव है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है, बट रिलेटिव टू द प्रीमियम्स जो मार्केट का जो वोलेटिलिटी है, इट विल फोर्स द पीपल टू एक्चुअली डेल्टा हेज, एंड वहां से रिस्क रिवर्सल्स काफी ज्यादा देखने को मिलता है. तो अगेन द व्यू फॉर द पोजिशनल ट्रेड्स रिमेन इंटैक्ट. जब तक 24,600 के ऊपर एक ब्रेकआउट या 23,800 के नीचे एक ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, द मार्केट्स वुड कंटिन्यू टू बी इन अ कंसोलिडेशन स्टेट. एंड इफ यू नोटिस देयर इज not a decent drop in VIX as well, because अगर same kind of a consolidation 26,000 के आसपास हो रहा था in the month of January, उस point of time पे VIX single digit में trade कर रहा था, as low as 9.2 9.3 पे trade कर रहा था. But even now similar kind of a pattern is forming here, similar kind of a consolidation has happening here because of the constant incoming news flow. The India VIX is still trading somewhere around 17-18 levels. So markets need some sort of a catalyst to actually break out of this consolidation, either on the upside or on the downside. But looks like the markets have already given some sort of a fall, and depending upon how the US markets react, our markets are mostly, like I would say 70% there is a probability that the market should usually break out higher, because over the last 2.5-3 years our markets have given zero returns in INR terms, and dollar terms पे तो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है. एंड जनरली जो बेयर मार्केट फेज जो रहता है 3 to 4 years रहता है. एंड यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सी द लास्ट लेग डाउन बिफोर एक्चुअली गोइंग बैक अप, बट एज एन इन्वेस्टर आई वुड एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू एक्चुअली बाउंस फ्रॉम हियर. बट लुक्स लाइक द रैलीज आर बीइंग सोल्ड इनटू, एंड रैलीज के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, एंड इवन द गुड न्यूज इज बीइंग सोल्ड इनटू. लाइक 2 दिन पहले एक अच्छा न्यूज आया, एंड इवन दैट न्यूज कुड नॉट सस्टेन द हायर लेवल्स ऑन निफ्टी. सो लो टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग. ठीक है, तो जनरली जो इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन पॉइंट्स बनता है, सो उनका जो डेज हाई एंड डेज लो जो रहता है, इट इज यूजुअली सैक्रोसैंक्ट. बट इफ यू नोटिस, markets multiple times उस लो को तोड़ता है, and then it reaches the day's high, and then it comes to hunt the stop losses around the day's low. For example, first candle पे यहाँ पे day's low बना, and the market almost shot up like 100 points, and वहाँ से फिर से 120 points का एक लो मारा, where like it absorbed almost all the stop losses. Then it went back to the day's high, and again ये लो को भी यहाँ पे तोड़ा. यहाँ पे दूसरी बार तीसरी बार बेसिकली क्या होता है, जनरली एक बार अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप को करता है, let's say there is a support here and market first time
सपोर्ट पे आया, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा पुल बैक एट काइंड ऊपर जाता है, इतना मतलब पूरा ऑलमोस्ट डेस हाई के आसपास नहीं जाता, डेस हाई यहाँ पे है तो आधा तक जाता है, एंड यहाँ पे फिर से एक बार लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल डबल बॉटम पैटर्न और डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न और व्हाटएवर. बट दिस टाइम द मार्केट्स नीचे आता है एंड इट गोज ऑल द वे टिल द डेज हाई, लुक्स लाइक वो यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करके बाउंस होने वाला है, एंड देन यहाँ से क्या करता है, यहाँ से फिर से वापस आके फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को खा के देन दूसरी बार जाता है, एंड देन थर्ड टाइम ऑल्सो इट डज द सेम थिंग. तो एवरी टाइम द मार्केट कम्स द ऑप्शन प्रीमियम्स काइंड ऑफ स्पाइक, एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है. तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग. आई हैव बीन ट्रेडिंग फुल टाइम फॉर द पास्ट 6 years नाउ, एंड जनरली लिक्विडिटी स्वीप एक बार होता है, 2 बार होता है, बट आजकल मार्केट्स में अगर सपोर्ट के आसपास, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट्स इतना फास्ट 1 minute एंड 2 minute कैंडल्स प्रिंट करता है, तो इफ अट ऑल अ बिग फंड वांट्स द मार्केट्स टू गो अप एंड दे वांट टू बिल्ड देयर पोजीशन, ऑब्वियसली वो ये स्पाइक में, ये कैंडल में उनका पूरा पोजीशन जा नहीं पाता है. तो जनरली स्पीकिंग द मार्केट्स वुड कम टू दैट पर्टिकुलर लेवल अगेन एंड देन absorb the liquidity the next time and then it hits higher. So in a way this is a good for the scalpers because यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे डेस आई के आसपास बुक कर सकते हैं, एंड मल्टीपल टाइम्स उसी लेवल पे आके लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने से लाइक स्कैल्पर लोगों को काफ़ी अच्छा रेजिम चल रहा है. बट इट इज़ नॉट सो ईजी रेजिम फॉर ईदर द डायरेक्शनल ट्रेडर्स और इवन द ऑप्शन राइटर्स और डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स. सो टू टॉक अबाउट द स्ट्रैडल ओपनड एट 330 एंड थोड़ा इनिशियल फर्स्ट 5 minutes में थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिला, बट आफ्टर दैट द स्ट्रैडल हैज़ बीन इन अ वन वे मूव. 290 के आसपास मार्केट्स प्राइज इन करके वीकेंड को एंटर कर रहा है, वाइल वी कैन सी दैट देयर इज अ कांस्टेंट न्यूज़ फ्लो, सम ऑफ इट इज ट्रू, सम ऑफ इट इज फॉल्स, बट नॉनदलेस 300 पॉइंट इज आई वुड फील अ ह्यूज अंडर प्रीमियम ऑफ रिस्क, बिकॉज येस हमको लगता है कि यार लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट कहीं नहीं गया, 24,000 की इन एंड अराउंड होवर कर रहा है एंड ऑल दैट, बट ऑल इट टेक्स इज one news, one tweet, one Truth Social post from Trump to actually make us open with a huge gap. So I would not be very comfortable trading this premium. अगर जाता है, अगर हमको इसमें थीटा डी के कैप्चर नहीं करने को मिलता है तो इट्स ओके, बट आई वुड नॉट बी टेकिंग सच काइंड ऑफ अ रिस्क इन दिस काइंड ऑफ अ टमल्टस मार्केट. ठीक है. सो अगेन मंडे आई वुड नॉट एडवाइज डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स बिकॉज वी हैव गॉटन अ स्मॉल रेंज डे टुडे, नैरो रेंज डे आज जो मिला है, तो हम अगेन एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ वोलेटिलिटी ऑन मंडे. इफ यू नोटिस ऑन 1DT, one day we'll get like a linear kind of a crush, of course with lot of delta adjustments, तो in the end आपको ज़्यादा हाथ में मिलने वाला नहीं है. On the other day then the rest of the 1DT, like मान लो कि निफ्टी में easy 1DT मिला तो सेंसेक्स में काफ़ी टफ होने वाला है, where the market also shoots up or the market also moves in a volatile way, and at the same time we'll see a decent amount of spike in the straddle as well. So last सेंसेक्स की 1DT पे like we saw this move, एक sudden up move हमको देखने को मिला था, एंड हो सकता है कि कल का जो 1DT है थोड़ा शांत रहे, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मार्केट माइट बी गिविंग वॉल क्रश, देयर विल बी डेफिनेटली डेल्टा adjustments that the markets will force you to do. So that is why again delta neutral trading in my opinion is practically dead on an intraday basis. So I would not be very keen on opening any delta neutral trades. So कल के लिए जो ट्रेड्स जो है ये होने वाला है कि ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. सो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड 10 o'clock के पहले अगर ब्रेकआउट देता है तो देन विल ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ द मार्केट्स, एंड अगर ब्रेकडाउन मिलता है देन ऑल्सो विल ट्रेड द ब्रेकडाउन ऑफ द मार्केट्स. सो इन केस ऑफ अ बिग गैप अप और अ बिग गैप डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस रेंज, यहाँ पे जो एक छोटा सा बैंड हमको नजर आ रहा है बिटवीन दिस एंड दिस, ये जो रेंज हमको नजर आ रहा है, सो दिस रेंज विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड ये जो रेंज भी है इतना छोटा नहीं है, 50-60 पॉइंट रेंज जो है. तो यहाँ पे इस रेंज के आसपास हम लोग थोड़ा रिस्क रिवर्सल ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं. मान लो कि अगर यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, तो ब्रेकआउट को ट्रेड करने से क्या हो जाता है कि विल नॉट गेट अ बिग अप मूव, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आ सकता है. तो मैक्सिमम 1:1 काइंड ऑफ अ ट्रेड्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं. बट अगेन मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से 24,400 के आसपास खुल जाता है, तो देन एनी अप्रोच ऑफ द मार्केट टुवर्ड्स दिस लेवल समवेयर अराउंड 24,260, तो यहाँ पे हम लोग एक रिस्क रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं.
से एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट्स से 24,000 के नीचे अगर खुलता है, तो देन वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 30-35 मिनट्स ऑफ मार्केट एक्शन टू एक्चुअली ascertain what has changed in the markets over the weekend, because no matter what the market has been consistently trading about 24,000 levels, and 24,000 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23,960 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग आया, 24,000 के आसपास एक यहाँ पे रिवर्सल आया, एंड यहाँ पे एक बार 23,900 के नीचे गया था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली एक ऊपर आया, एंड इवन डे बिफोर यस्टरडे द मार्केट्स शॉट अप एग्जैक्टली फ्रॉम 24,000 लेवल्स। तो 24,000 लेवल्स को काफी शिद्दत से मार्केट होल्ड कर रहा है। सो अगर 24,000 के नीचे अगर हम लोग ओपन होते हैं, तो देन दैट वुड scare a lot of the positional option writers, especially who are betting on the fact that markets 24,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो देन अगर 24,000 के नीचे ओपन होता है, तो देन वी शुड बी लिटिल केयरफुल, एंड किसी भी हाल में 24,880 24,900 के आसपास आता है, तो एक 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ हम एक मीन रिवर्शन ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पैटर्न के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट्स ऑलमोस्ट 24,170 से 24,900 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड करने वाला होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। तो 50 पॉइंट्स अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हिट होने दो, बिकॉज दिस इज अ हाई गुड रिस्क रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ प्रपोजिशन। यहाँ पे हम लोग एक बार री एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है, लेट्स से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया ओवर द वीकेंड, एंड इस जो कल का जो हाई के ऊपर अगर मार्केट ओपन ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो देन एक जो ट्रेड है विच इज द एनगल्फिंग डेली एनगल्फिंग कैंडल वाला ट्रेड जो होता है, उस ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे इसके ऊपर अगर एक गैप अप खुल जाता है, एंड फर्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल जो है अगर वो रेड कैंडल बन जाता है, तो देन उस रेड कैंडल का लो ब्रीच होते ही हम लोग बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। स्पेशली ITM कॉल्स को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, एंड द स्टॉप लॉस वुड बी द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो जनरली क्या होता है कि अगर मार्केट्स को ऊपर जाना नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर खुलता है ना, तो वहां पे नॉट ओनली ट्रिगर्स द प्रॉफिट बुकिंग, बट वहां पे जो शॉर्ट करने वाले करना चाहते हैं मार्केट्स को, उन लोगों को भी काफी अच्छा प्राइस मिल जाता है टू शॉर्ट द मार्केट। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे वाला दिन आ जाता है, गैप अप खुलने के बाद भी एक पूरा ट्रेंडिंग डे बन जाता है, विच विल काइंड ऑफ एनकम्पास द प्रीवियस 2-3 ग्रीन कैंडल्स। तो ऐसे काइंड ऑफ अ डे को ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा, बिकॉज एनीवे रिवर्सल्स के लिए हम लोग ऑलरेडी प्लान किए हैं, बट अगर ये सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है, आई एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू प्रिंट दिस काइंड ऑफ अ कैंडल। वेदर इट विल प्रिंट और नॉट, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा तो ये होता है, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला एक पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो या again the markets have been showing a lot of volatility, and trade with caution, trade with smaller size, because मेरा जो 1.5% के आसपास मेरा drawdown hit हो चुका है, and I'll be definitely going with smaller size, or even I don't mind even sitting outside for a couple of expiries completely. Depending upon the merit of the markets, I'll take the call, and trade safe, trade with good risk controls, and I'll see you after Monday's market action. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.